Good morning friends, myself Vivek Prajapati and today topic I am going to cover is that is what here risk management. So, risk management I am going to cover. So, today topic is risk management. In this risk management I am going to cover about the introduction, risk management, risk classification and how you manage the risk, then advantages of risk management, then different type of risk and role of company secretary or risk manager, the internal control system, COSO internal audit and your what are the different type of risk. So, risk management. See, nowadays risk management play a very vital role in the world. Not only in a business, there are so many others aspect has to be covered, but risk management one of the very important topic which has to be understand. So, risk management. So, as I told you, I am going to cover risk management classification, how management of risk process, advantages of risk, reputation of risk management, your responsibility of risk management, role of company secretary, internal control system, COSO internal audit framework and role and responsibility of internal control. So, risk management. What is risk? Before understanding something, you should know about what is risk. So, what do you mean by risk? It is a unprobable event. Event may be occur or may not be occur. For example, अभी जो है रास्ता में कोई आदमी जा रहा है, क्या होगा फ्यूचर कोई देखा है क्या? Nobody knows. हो सकता है रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, आदमी मर जाए, हो सकता है, am I right? और मे बी फॉर एग्जाम्पल इन बिजनेस केस ऑल्सो बढ़िया है, कंपनी चल रहा है, स्टोर्स है और इन्वेंट्री रखा हुआ है, इन्वेंट्री में आग लग सकता है, फायर में भी अकर, ठीक है. एक शिप है जो कि जा रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस और बीच में संक हो सकता है. सो देयर आर सो मेनी अदर रिस्क. सो रिस्क इज व्हाट it may be defined as the possibility that an event will occur or may be adverse effect on the achievement of company objective of goal. Means the event may be occur or may not be occur. The event may be occur or may not be occur. That might be a risk. So, what is the risk? Risk is a possible event, may be occur or may not be occur. In a organization, maybe private, government or small or big organization, there is a risk. So, organizational objective of the risk management to commit, know the business, community, the enterprise risk management. So, managing the risk is not a new challenges. Management of the risk is not a new challenges. So, risk is nothing but it is defined as a possible that event will occur and adversely affect the achievement of the company goal or objective. Then any organization, public or private, large or small organization, face internal or external uncertainty, ability to achieve the objective. कंपनी का ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में बहुत सारे डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम आ सकता है. सो दैट इज कॉल्ड रिस्क. सो ऑर्गेनाइजेशनल हैज टू मैनेज द risk, that is enterprise risk management. So, managing the risk is not a new challenges. As I discuss you, management of the risk is not a different or it is not a difficult task, but the way you are managing it is very important.
then outcomes it's possible or variation, hence risk is 0. So now we are going to understand next is your different type of risk. So what are the different type of risk? Risk may be different type, maybe industry risk, maybe your market risk, political risk, economic risk, social economic risk, liquidity risk, disaster risk, legal risk or नॉन कॉम्प्लायंस रिस्क. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क. बहुत तरह के रिस्क हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं इसको सिस्टमेटिक रिस्क एंड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क. सो दीज आर द सम ऑफ टाइप ऑफ रिस्क. क्या क्या रिस्क है? रिस्क में भी ऑन सिस्टमेटिक रिस्क और सिस्टमेटिक रिस्क, controllable risk or uncontrollable risk. So what is unsystematic risk? Unsystematic risk are those risks which is controllable by the organization or micro in nature. जो ऑर्गेनाइजेशन जो रिस्क जो है ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंट्रोल कर सकता है उसको बोलते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क और कंट्रोलेबल रिस्क. ठीक है, जैसे हो गया बिजनेस रिस्क, लिक्विड रिस्क, फाइनेंशियल और क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क. सो दीज आर द सम ऑफ द रिस्क ऑन सिस्टमेटिक रिस्क. और सिस्टमेटिक रिस्क मतलब क्या होता है? जो बिजनेस का कंट्रोल में नहीं है, दोज रिस्क व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट आर कॉल्ड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क. जैसे हो गया पॉलिटिकल, डिजास्टर रिस्क, दैट रिस्क आर कॉल्ड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क. So this is I have explained. और in the context risk may be business risk, liquid risk, financial risk. So industry risk, industry specific risk, management risk, market risk, political risk, credit risk, liquid risk, disaster risk, system. So I am going to cover all this thing detail. कोई चिंता का बात नहीं है, मैं हर एक चीज को कवर करूंगा आपके लिए. सो मैंने एक बढ़िया सा डायग्राम बनाया है आपके लिए इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए. सो प्लीज गो थ्रू दिस. इंडस्ट्री रिस्क. First is your industry risk. Second is your management or operational risk. Third is market risk. Four is political. Fifth is your credit risk, liquid risk. 7 is disaster. 8 is your systematic risk. 9 is your legal risk. So these are risks may be classified. So 9 types of risk. कितना टोटल ग्रह है? प्लैनेट कितना है? 9 है. सो रिस्क कितना टाइप का है? 9 है. 9 प्लैनेट, 9 रिस्क. गॉट माय पॉइंट माय फ्रेंड्स? सो व्हाट इज इंडस्ट्री रिस्क? इंडस्ट्री रिस्क क्या होता है? इंडस्ट्री रिस्क में भी इकोनॉमिकल और मे बी सर्विस रिस्क, मार्केट रिस्क और बिजनेस रिस्क, कस्टमर रिलेशन रिस्क, रेपुटेशन रिस्क और कंपटीशन रिस्क. सो दीज आर द सम काइंड ऑफ रिस्क. सो इंडस्ट्री रिस्क क्या होता है कि इकोनॉमी रिस्क ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस और क्लाइंट और इंडस्ट्री रिस्क. मीन्स प्रोडक्ट, आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट रिस्क हो सकता है. मार्केट में आपका प्रोडक्ट चले या ना चले, दैट मेट बी ए रिस्क.
आपका प्रॉफिटेबिलिटी हो या ना हो, दैट माइट बी ए रिस्क, क्योंकि आप प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, सेल नहीं हो रहा है, तो आपका प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, सो दैट माइट बी इकोनॉमी रिस्क। गॉट माई पॉइंट। देन सर्विस रिस्क, आप सर्विस रेंडर कर रहे हैं बट आप उसको प्रॉपरली सही तरह से दे नहीं पा रहे हैं, जैसे हो गया कि डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट कि आफ्टर सेल सर्विस वो दे नहीं पा रहे हैं, तो दैट माइट बी ए रिस्क। देन मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट जोग्राफिकल, हॉरिजेंटल और मे बी एनी टाइप ऑफ मार्केट हो सकता है, प्रोडक्ट मार्केट हो सकता है, सर्विस मार्केट हो सकता है, जोग्राफिकल हो सकता है, सो देयर में भी डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट रिस्क स्ट्रक्चर का हो सकता है। देन बिजनेस डायनामिक, जो पहले मेथड ऑफ बिजनेस था वो अभी चेंज होकर दूसरा हो सकता है, सो दैट माइट बी अ रिस्क। देन कस्टमर रिलेशन रिस्क, जो कस्टमर को रिलेशन मेंटेन करने में हो, आप बढ़िया सर्विस नहीं दे रहे हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, क्वालिटी खराब है, आफ्टर सेल सर्विस दे नहीं पा रहे हैं, कस्टमर को जो क्वालिटी प्रोडक्ट था वो दे नहीं पा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड रेपुटेशन रिस्क। देन कंपटीशन रिस्क, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं दैट इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द कंपटीटर, जो कंपटीटर जैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे आपका क्वालिटी अच्छा नहीं है, सो नेचुरली आपका क्या होगा, मार्केट में डिमांड क्या होगा, कम जाएगा, सो आपका सस्टेनेबिलिटी हो पाएगा क्या, नहीं, इट विल बी डिफिकल्ट वन, सो दैट इज व्हाट कॉल योर कंपटीशन। सो इंडस्ट्री रिस्क में एक डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क है, जैसे हो गया इकोनॉमी रिस्क ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस रिस्क, देन योर मार्केट रिस्क, बिजनेस रिस्क, रेपुटेशन रिस्क और कंपटीशन रिस्क। देखिए सेकंड हो गया मैनेजमेंट और ऑपरेशन रिस्क। सो मैनेजमेंट और ऑपरेशन रिस्क क्या हुआ, रिस्क टू द प्रॉपर्टी ऑफ क्लियरली एज वेल एज डिफाइंड इन द प्रोसेस रिस्क, आपका जो प्रोसेस कर रहे हैं वो मैनेजमेंट और ऑपरेशनल रिस्क, ये है मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल रिस्क। सो मैनेजमेंट रिस्क, आप कंपनी को सही ढंग से चला नहीं पा रहे हो, जो प्रोसेस होना चाहिए वो प्रोसेस आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, मतलब हो गया लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऑपरेशन में आपका प्रॉब्लम बार बार जो है कि मशीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, दैट माइट बी ऑपरेशनल रिस्क। व्हाट माय पॉइंट, रॉ मटेरियल आपको पास ठीक ठीक आ नहीं पा रहा है, ठीक है, इन्वेंट्री आपका बढ़ जा रहा है, ठीक है, नॉन मूवेबल प्रोडक्ट का ज़्यादा बढ़ रहा है, सो दैट माइट बी अ मैनेजमेंट और ऑपरेशनल रिस्क। देन मे बी एनवायरमेंटल और पॉल्यूशन कंट्रोल, आपका जो एनवायरमेंटल और पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, एनवायरमेंटल से आप क्लियरेंस ठीक से ले नहीं पा रहे हो, जैसे माइनिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होता है बिकॉज दे आर अनएबल टू गेट द CTO कंसेंट टू ऑपरेट, तो आपको माइनिंग का अलाउबल ही नहीं है, सो एनवायरमेंट क्लियरेंस यू आर नॉट गेटिंग दैट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिस्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, आपका प्रोडक्ट जो उतना क्वालिटी नहीं है, आप रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, रिसर्च आर नॉट सफिशिएंट, आपका टेक्नोलॉजिकली वो साउंड नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्मार्टफोन का ज़माना का है बट आप प्रोडक्शन कर रहे हो नोकिया 1100, मतलब समझे, सो यू डोंट हैव द रिसर्च, जो मार्केट में जैसे डिमांड है उसे ही आपको सप्लाई करना पड़ेगा ना, कि आपका हिसाब से मार्केट चलेगा, नेचुरली नहीं, इट इज़ नॉट ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट, हो सकता है छोटा बड़ा जगह में, बट अगर वर्ल्ड में मार्केट में आपको कंपटीशन करना है तो एज पर द कस्टमर डिमांड यू नीड टू सप्लाई द प्रोडक्ट। द चेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी, अभी देखिए नाउ डेज द प्रोडक्ट आर डिलीवरिंग बाय ड्रोन, पहले इंडिविजुअल ये होता था, पहले फॉर एग्जांपल पहले हम लोग लेटर लिखते थे, उसके बाद क्या आया, टेलीग्राम आया, फिर फोन आया, अभी मेल आ रहा है, व्हाट्सएप का जमाना आ गया, फेसबुक जमाना हो गया, सो एवरीथिंग टेक्नोलॉजी हैज बीन चेंज, ड्राइवरलेस अभी कार आ गया है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, they are already in the some country they already introduce driverless car, इलेक्ट्रिक कार आ रहा है, बट आप पुराने ढर्रे से बैलगाड़ी चला रहे हो, सो ऐसे चलेगा क्या, सो दीज आर द सम ऑफ द ऑपरेशनल और मैनेजमेंट रिस्क। देन मार्केट रिस्क, मार्केट रिस्क क्या हो सकता है, मार्केट रिस्क, मार्केट रेट रिस्क में भी रॉ मटेरियल रेट
जो आप रॉ मेटेरियल खरीद रहे हो मार्केट से उसका आपको प्राइस नहीं मिल पा रहा है, आपका रॉ मेटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। when your raw material cost is higher when your raw material cost is higher, then what will happen? Your finished product cost will be higher, whereas your competitor product is less, it is cheaper, so naturally you will be in the trouble. So that will be market risk. Then quantity risk, जो क्वांटिटी में आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो आपको लार्ज क्वांटिटी डिस्काउंट मिल रहा है बट वो अवेलेबल नहीं मार्केट में, तो आपके इट में भी है मार्केट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब क्या होगा? नेचुरली जो कंपनी क्या करता है, दे वांट और दे बोरो द वर्किंग कैपिटल आप बोरो करते हो, बिकॉज फॉर डे टू डे रनिंग एक्टिविटीज यू नीड द वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपको फंड चाहिए, तो आप बैंक से बोरो करोगे, उसका रेट बढ़ गया, बैंक का रेट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ बोरोइंग इज हायर, सो दैट माइट बी द रिस्क। इकोनॉमी अच्छा नहीं होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, सो दैट इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। देन फ्लक्चुएशन रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, रेट आपको बढ़ गया, किसका? डॉलर का और अदर करेंसी रिस्क, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स रिस्क। So these are some of the market risk. Then political risk, political risk क्या हो सकता है? देखिए गवर्नमेंट चेंज होता है हर एक टाइम, क्या हर एक समय में जैसे गवर्नमेंट चेंज होता है पॉलिसी भी चेंज होता है, ठीक है? सो माइट बी द गवर्नमेंट इज नॉट फेवरेबल विथ यू, सो यू दैट माइट बी ए प्रॉब्लम फॉर यू। जैसे हो गया एक लाइसेंस, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट चाह रहा था इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो जितना भी अगर पेट्रोल बनाने वाली कार है क्या होगा? डूब जाएगा, नेचुरली इट इज ऑब्वियसली, बिकॉज इट मे बी ए पॉलिटिकल डिसीजन, ठीक है? जैसे जीएसटी आया, सो इट इज अ पॉलिटिकल डिसीजन, वेयर जो बहुत पहले से आने वाला था बट वो नहीं आ पाया था, जब गवर्नमेंट आया उसको इंट्रोड्यूस किया। तो आप अगर गवर्नमेंट के साथ मैच करके नहीं चलेंगे तो इट विल बी ए रिस्क। देन वार रिस्क, दो कंट्री के बीच में वार हो गया, आप एक ऐसा इंडस्ट्री कर रहे वो बॉर्डर पे है, तो जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर में है, तो क्या होगा? नेचुरली देयर विल बी चांसेस ऑफ वार, और आपका जो फैक्ट्री डैमेज होने का है, मे बी यू आर अनएबल टू प्रोड्यूस, बमबारी हो रहा है, इधर से बम उधर से बम, इधर से टैंक चल रहा है उधर से ये हो रहा है, so that may be a war or that may be any problem. Then insurance or fire risk, then fiscal or monetary policy, monetary गवर्नमेंट का monetary policy और fiscal policy चेंज हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गया, और टैक्सेशन रिस्क, नया टैक्स लॉ आ गया जैसे मैं आपको पहले बताया। सो दीज आर द सम ऑफ द पॉलिटिकल रिस्क। सो लेट अस go through the type of risk. So these are the industry risk, जैसे मैंने आपको बताया था, इकोनॉमी रिस्क, प्रोडक्ट और प्रोसेस और क्लाइंट रिस्क, देन सर्विस रिस्क, मार्केट स्ट्रक्चर रिस्क, बिजनेस डायनामिक रिस्क, कस्टमर रिलेशन रिस्क, रेपुटेशन रिस्क, कंपटीशन रिस्क। नेक्स्ट हो गया मैनेजमेंट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क, रिस्क टू द प्रॉपर्टी, क्लियर एंड वेल डिफाइंड वर्क प्रोसेस होना चाहिए, आपका जो वर्क प्रोसेस हो फ्लो होना चाहिए वो डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और R&D रिस्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिस्क, एजेंसी और नेटवर्क रिस्क, एनवायरमेंटल और पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल एंड पॉल्यूशन रिस्क और रेगुलेशन रिस्क, लोकल बेनिफिट्स और नियर मेट्रो रेलवे स्टेशन और सिटी। लोकेशन बेनिफिट ये हो सकता है, लोकेशन बेनिफिट मतलब आप ऐसी जगह पे आपको फैक्ट्री लगा रहे हो जहां पर कि रॉ मेटेरियल इजीली अवेलेबल है,
और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत अच्छा है, रेलवे स्टेशन के पास में आपका इंडस्ट्री है, सो नेचुरली यू गेट द बेनिफिट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा। अगर ये दूर में होगा तो नेचुरली आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगा। जैसे बिहार का जगह में देखेंगे, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, या आप जो हिली एरिया है, हिली एरिया में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बैरियर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देन पर्सनल रिस्क सच एज लेबर और टर्नओवर रिस्क, लेबर टर्नओवर रिस्क, जो भी है कि लेबर टर्नओवर, आदमी आ रहे हैं छोड़ रहे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी में is बहुत number of person will come and number of person will go very frequently, so that may be a personal risk. Then raw material risk, what is may be the raw material risk, जैसे मैं बोला था raw material rate, the quantity rate, supplier lead time, supplier lead time मतलब क्या होगा, the time delivery the product and receiving the product, the gap is known as lead time, तो सप्लायर रीड टाइम। इंटरेस्ट रेट रिस्क, देन फॉरेन रिस्क, फॉरेन रिस्क फ्लक्चुएशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट सेम। देन पॉलिटिकल रिस्क, इलेक्शन, इलेक्शन आ गया आपका, अभी नया इलेक्शन आ गया, तो दैट में भी रिस्क, आपका काम बंद हो जाएगा कि सब जो आदमी ड्यूटी पे चल जाएंगे, सब जो कीजिए पार्ट, गवर्नमेंट चेंज हो गया, रूल चेंज होगा, पॉलिसी चेंज हो गया, इंश्योरेंस रिस्क, स्ट्राइक, फिजिकल एंड टैक्सेशन, सो दीज आर द सम ऑफ द टाइप ऑफ a risk. Then your credit risk, then credit risk and liquidity risk. Credit risk, credit risk क्या होता है, credit worthiness of the company, अगर कंपनी बहुत अच्छा है तो रेपुटेशन उसका अच्छा है तो उसको लोन इजीली मिलेगा, बट एक कंपनी जो है लोन लेके क्या रिफंड कैपेबल नहीं है रिपेमेंट करने के लिए, तो उसको नेक्स्ट टाइम लोन मिलेगा कि नहीं रहेगा। जैसे विजय माल्या कंपनी है, उसका जैसे प्रोमोटर रहेगा तो लोन देगा कोई उसको क्या नेक्स्ट टाइम, चलिए नहीं। सो क्रेडिट वर्दीनेस, रिस्क ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ ड्यू टू द क्लाइंट, जो क्लाइंट का जितना डिस्प्यूट हो रहा है, सपोज कस्टमर का डिस्प्यूट हुआ, कोई प्रोडक्ट आपने बैड क्वालिटी का दे दिया तो आप उसको नया प्रोडक्ट दे दीजिए, एक्सचेंज करा दीजिए, सो दैट माइट बी ए रिस्क कि आप अगर सही समय से कस्टमर का सेटलमेंट नहीं करा रहे हो, लॉन्ग टर्म पेंडिंग कर रहा है केस, सो दैट मे ए रिस्क। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, आपका बैड डेब्ट एंड डाउटफुल डेब्ट बढ़ रहा है, ठीक है, सो दैट माइट बी ए रिस्क। देन लिक्विडिटी रिस्क, आपके पास पैसा ही नहीं है बिजनेस चलाने के लिए, वर्किंग कैपिटल, दैट may be a liquid risk, that is financial risk. Then borrowing limit, कैश रिजर्व और मैनेजमेंट रिस्क, आपके पास कैश ही नहीं है, कैश मैनेजमेंट आप ठीक से कर नहीं पा रहे हो, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड कैश रिजर्व रिस्क और कैश मैनेजमेंट रिस्क। देन डिजास्टर रिस्क, व्हाट इज डिजास्टर रिस्क, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो क्या करोगे आप, बिजनेस चला पाओगे, नेचुरली नहीं, सो दैट इज डिजास्टर रिस्क। देन मैन मेड रिस्क, जैसे लॉकआउट हो गया फैक्ट्री एक्ट के तहत, माइंस एक्ट के तहत, मैन मेड रिस्क, एक आदमी का डेथ हो गया, सब हड़ताल में आ गए, तो आपका हो सकता है ये, नेचुरली हो सकता है, लेबर यूनियन स्ट्राइक करा दिए, प्रोडक्शन हो पाएगा, नहीं होगा, ठीक है। देन लिक्विडिटी रिस्क, जो मैंने आपको बढ़ा दिया था, जैसे सिस्टम कैपेबिलिटी, दैट इज व्हाट का सिस्टम रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क गलती से लिखा गया, दिस इज सिस्टम रिस्क। और आईटी रिस्क, सिस्टम कैपेबिलिटी, सिस्टम रिलायबिलिटी, ऑब्सोलेंस रिस्क, डाटा इंटीग्रिटी, कोऑर्डिनेशन,
आपका जो डाटा रखे हैं वो चोरी हो गया, पासवर्ड रखे थे, पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, जो भी आपका वेबसाइट में डाटा है उसको कोई हैक कर लिया, सो दैट माइट बी ए सिस्टम रिस्क। ऑब्सोलेंस ऑफ रिस्क मतलब जो डाटा है वो ऑब्सोलेट हो गया, सो दैट माइट ए रिस्क। सो ए रिस्क क्या, डिजास्टर रिस्क, सिस्टम रिस्क, लिक्विड रिस्क, क्रेडिट रिस्क। देन लीगल रिस्क। लीगल रिस्क क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, क्योंकि आउटसाइडर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा, सो कोई भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं जिसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ रहा है, लॉ में केस पेंडिंग चल रहा है, जैसे टैक्स का डिस्प्यूट हो गया, सो आपका केस पेंडिंग है, सो दैट माइट बी ए कॉन्ट्रैक्ट रिस्क। कॉन्टेक्चुअल लायबिलिटी, फ्रॉड, कंपनी में बड़ा सा फ्रॉड हो गया, जैसे सत्यम केस हो गया, सारा केस हो गया, बड़ा फ्रॉड हो गया, तो क्या कंपनी का ये रिस्क है कि नहीं, जनरली ये रिस्क है। इंश्योरेंस रिस्क, सो दीज आर द लीगल रिस्क। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एक और हो गया, ये जमीन के बारे में आपका झगड़ा चल रहा था, ओनर बोला मेरा है, वो कंपनी बोला मेरा है, गांव वाले से झगड़ा चल रहा है लंबा समय तक, तो केस हार गए हैं आप, सो दैट माइट बी ए रिस्क। सो नॉन कॉम्प्लायंस रिलेटेड रिस्क, आप अगर जो लीगल कॉम्प्लायंस है, रूल रेगुलेशन, जैसे कंपनीज एक्ट का वायोलेशन कर लिए, टाइमली बोर्ड मीटिंग नहीं किए, आपने कोई मीटिंग्स नहीं किए, रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किए प्रॉपरली, और देयर आर सो मेनी अदर पेनल प्रोविजन आप नहीं किए, तो आपको ये पेनल्टी हो सकता है, फाइन में, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, डायरेक्टर जो है प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट दे दिया तो वो रिस्क है, सो दैट इज में भी नॉन कॉम्प्लायंस रिस्क। जो रूल रेगुलेशन आप कंप्लाई नहीं किए, सेबी का, स्टॉक एक्सचेंज का, आप और डीजीएमएस, जैसे माइंस अब में काम कर रहे हो आप, तो डीजीएमएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस का आपको फॉलो करना है रूल, वो नहीं किए, सेफ्टी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किए, सो दैट मे बी ए रिस्क ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस। सो आपके लिए फाइन हो सकता है, इम्प्रीजमेंट हो सकता है, और आपका गुडविल, रेपुटेशन आपका लॉस होता है, गुडविल और रेपुटेशन में भी आपका जा सकता है। सो दीज आर द सम टाइप ऑफ रिस्क। सो आई हैव कवर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क। जैसे हो गया, आई एम जस्ट रिपीटिंग, इंडस्ट्री रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, देन पॉलिटिकल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, डिजास्टर रिस्क, your then system risk, legal risk, and last is your non-compliance risk. So 9 type of risk I have covered. Then risk management process. So in what methods you will, or what is the process to control your risk? Risk management process. Risk management process. Risk management is a structure consist of continuous process. Risk management ये क्या है? It is a consistent and continuous process across the organization. The process as defined the identify, assessment, control and expose monitoring. पहले आइडेंटिफाई करना है रिस्क को, देन असेसमेंट करना है, कंट्रोल करना है, देन योर मॉनिटरिंग करना है. सो दीज आर द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. सो रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी पहले हो गया आइडेंटिफाई, असेसमेंट, कंट्रोल, देन योर मॉनिटरिंग. रिस्क मैनेजमेंट एक्टिवली सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ शेयर होल्डर वैल्यू. रिस्क मैनेजमेंट जो है शेयर होल्डर का जो है वैल्यू को अचीव करने में हेल्प करता है. रिस्क मैनेजमेंट कैन बी सीन एज ए टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. रिस्क मैनेजमेंट इज ए टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. रिस्क मैनेजमेंट जो है रिस्क मैनेजमेंट
टूल है। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, ये क्या कर सकता है? रिस्क मैनेजमेंट इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऑनगोइंग प्रोसेस, इन्वॉल्व एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आपका करंट सिचुएशन क्या है? रिस्क मैनेजमेंट में आप जान सकते हैं आप कहां पर हैं, आपको कहां जाना है, व्हाट इज योर प्लान एंड व्हाट यू आर गोइंग टू इन द नेक्स्ट स्टेप। इट हेल्प फॉर द डिसीजन मेकिंग। हम लोग जाएंगे व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। So objective of risk management framework. What is the objective of risk management framework? Identify, assess and prioritize and managing the risk. आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले क्या क्या टाइप ऑफ रिस्क है, देन एसेस उसका इम्पैक्ट कितना होगा वो एसेस करना है, प्रायोरिटाइज आपको रिस्क जो टाइप ऑफ रिस्क है कौन रिस्क को पहले मैनेज करेंगे प्रायोरिटाइज करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन यू हैव टू मैनेज द रिस्क। जिसको प्रायोरिटी देना है उसको आइडेंटिफाई करके उसको पहले मैनेज करना है। देन इंक्रीज द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। जो रिस्क है रिपोर्टिंग के लिए आपको फ्रेमवर्क डेवलप करना पड़ेगा। देन रिस्क कल्चर, डेवलप द रिस्क कल्चर और एम्प्लॉई, एनकरेज द एम्प्लॉय टू आइडेंटिफाई एंड एसोसिएट विद द रिस्क। जो भी एम्प्लॉय है उनको आपको रिस्क को जो है आइडेंटिफाई करके उसको मैनेज करने के लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। एनकरेज द एम्प्लॉय टू आइडेंटिफाई एंड एसोसिएट विद द रिस्क, उसको डेवलपमेंट आइडेंटिफाई करके रिपोर्टिंग करने के लिए आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। देन व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? अगर रिस्क मैनेजमेंट आप करते हैं तो क्या एडवांटेजेस है? सो जनरली इट हेल्प फॉर द बेटर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प फॉर द बेटर डिसीजन मेकिंग। सेकेंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हो सकता है, आपके पास जितना रिसोर्सेस है मैन मटेरियल लेबर, सो रिसोर्सेस कैन बी ऑप्टिमम यूटिलाइज। देन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी कंपनी का गोल है उसको अचीव करने में आपको मदद मिल सकता है। इट विल हेल्प फॉर द अचीविंग योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देन इंप्रूव योर कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, जो कंपनी का गोल है उसको अचीव करने में मदद करता है। सो दीज आर द सम ऑफ द बेनिफिट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। So advantages of risk management. So better informed decision making, problem solving, achieve organizational goal, improve corporate governance, जो भी फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड का हो या कोई भी सीनियर मैनेजमेंट का हो, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या है पिलर है वो अचीव हो सकता है। देन फिफ्थ, योर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव। सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। So risk management help for the proper implementation of risk management, then better decision making, and what will be your new problem that will be identified. The risk management help for the your decision making or improve the corporate governance. So these are the some of the advantages of risk management. Then this is the step of risk management. So first is your
identify your risk, step 1. Evaluation of risk 2. Handling of risk 3. And your implementation of risk management decision, step 4. Monitoring the risk is 5. And corrective action is as 6. So these are the step of risk management. रिस्क मैनेजमेंट का एक क्या है, स्टेप है. सो इधर भी आपको मैंने बनाया है, देख सकते हैं ये रिस्क मैनेजमेंट का स्टेप. एस्टैब्लिश द कनेक्शन, आइडेंटिफाई द रिस्क, एनालिसिस ऑफ रिस्क, इवोल्यूशन ऑफ रिस्क, देन ट्रीट द रिस्क एंड मॉनिटर एंड रिव्यू द रिस्क. सो दीज आर द सम ऑफ द स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना पड़ेगा. व्हाट इज देन स्टेप बाय स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क. व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन रिस्क? It is a process of risk identification. It is a process of risk identification. So क्या क्या आपका रिस्क हो सकता है? So that is what called risk identification. जैसे हो गया आपका एसेट. एसेट इन्फॉर्म सच एज लिस्ट ऑफ एसेट क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, वैल्यू कितना है. सो वो आपका रिस्क हो सकता है. आपका प्रोडक्ट का लाइफ कितना है, एक डंपर है, डोजर है, माइनिंग में ये बहुत ही कॉमन है, उसका लाइफ क्या है. सो दैट माइट बी ए रिस्क. इन्वेंट्री हो सकता है आपका, रॉ मटेरियल, प्रोसेस, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, दैट माइट बी ए रिस्क. So that is what called identification of risk. Identification of risk is the process of identifying the most ongoing one day failure of per day identification. So risk management may be a asset information, list of asset, original cost, book value, replacement value, process regarding raw material, process, natural process, product informations, and liability of inform such as liability to stakeholder. Then risk evaluation और measurement. आप जब रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है आपको रिस्क का इवेल्यूट करना. सो व्हाट इज द रिस्क इवेल्यूशन? द डाटा अवेलेबल फॉर द कंसर्न इटसेल्फ नॉट एडिक्वेट. सो प्रोबेबली क्या लॉस हो सकता है. रिस्क इवेल्यूशन मतलब हो गया अगर इस आइडेंटिफाई करने के बाद आपका क्या लॉस होगा. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड रिस्क इवैल्यूएशन. इंपैक्ट ऑफ रिस्क, ये अगर रिस्क जानने के बाद कि 1 लाख का या 1 करोड़ का या 10 करोड़ का, हाउ मच योर लॉस विल बी, दैट इज व्हाट कॉल्ड योर रिस्क इवैल्यूएशन. प्रेडिक्ट द लॉस अकॉर्ड इफ देयर विल बी ए रिस्क, दैट इज व्हाट कॉल्ड रिस्क इवैल्यूएशन. रिस्क इवैल्यूएशन, it is a probable of change of loss will be occur, impact of loss or predict the loss. So that is what called risk evaluation or management. Then what is risk handling? Third step is your risk handling. So how you are going to handle the risk? So there are generally 6 वे, यू कैन से 6 वे ऑफ रिस्क हैंडलिंग. जनरली एक जो है 4 ही है, तो एक तो पार्ट है. जैसे रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिडक्शन, रिस्क टॉलरेंस और अचीव, देन रिस्क ट्रांसफर, रिस्क रिटेंशन, सॉरी रिस्क रिटेंशन, अवॉइडेंस, रिडक्शन, रिटेंशन एंड ट्रांसफर. सो 4 वे हैं जो कि रिस्क को हैंडल कर सकते हैं. सो ए फर्म एंटाइटल्ड टू फ्रीली डिसाइड हाउ मच विल बी द हैंडल द रिस्क, हाउ दे विल हैंडल द रिस्क.
सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट हैव एनहांस द कंपल्सरी इंश्योरेंस रेगुलेशन। जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हैं, इंश्योरेंस कंपनी से आप रेगुलेट करके रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। सो दीज आर द रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क रिडक्शन, रिस्क रिटेंशन एंड रिस्क ट्रांसफर। रिटेंशन जो है अचीव एंड पॉजिटिव। सो दीज आर द 4 वे रिस्क कैन बी हैंडल। सो व्हाट इज रिस्क अवॉइडेंस? अवॉइडेंस मतलब क्या होगा? जो रिस्क आपको हो रहा है वो लॉस से ज्यादा है, रिस्क अवॉइडेंस। आप रोज रिस्क मैनेजमेंट करने जाओगे सो आपका जितना खर्चा लगेगा, रिस्क होगा तब उससे कम खर्चा होगा। दैट इज कॉल्ड रिस्क अवॉइडेंस। ये बहुत ही रेयर केस में होता है, ठीक है। देन रिस्क रिडक्शन, ये क्या होता है? फिजिकल रिस्क रिडक्शन, मतलब जितना रिस्क हो रहा है, 10 करोड़ का रिस्क होने वाला है, आप घटा के उसको 2 करोड़ ले आओ। सो दैट इज व्हाट रिस्क रिडक्शन मीन्स। देयर आर सम steps you have taken for which risk, the probable loss will be lower or it will reduce. Then risk retention, रिटेंशन मतलब क्या हो गया? आप रिस्क को अपने पास रखते हो, देखते हो लॉस कितना होने वाला है, उसी हिसाब से आप क्या करते हो? रिस्क को कम कर देते हो और यू कैन रिटेन द रिस्क। और वो बहुत नेग्लिजिबल है, लॉस का अमाउंट बहुत नेग्लिजिबल है, तो आप क्या करते हो? रिस्क को रिटेन कर लेते हो, अपने पास रख लेते हो। देन ट्रांसफर द रिस्क, ट्रांसफर द रिस्क मतलब हो गया द रिस्क व्हिच यू आर ट्रांसफरिंग टू द थर्ड पर्सन। जैसे इंश्योरेंस कंपनी को आप हायर कर लिए, सो यू आर ट्रांसफरिंग योर रिस्क टू द अदर पर्सन, थर्ड पर्सन। सो दैट इज व्हाट कॉल्ड रिस्क ट्रांसफर। सो risk avoidance, it is the rare possible of avoid the risk completely। जो रिस्क को अवॉइड आप completely नहीं कर सकते हो, और इट द सिचुएशन इज वेरी रेयर। जनरली रिस्क अवॉइडेंस इज यूजुअली फिजिबल एट द प्लानिंग स्टेज। बिगिनिंग स्टेज में आप रिस्क को अवॉइड कर सकते हो। देखोगे कि फॉर एग्जाम्पल आप 10 तल्ला का बिल्डिंग बना रहे हो, उसमें 4 पिलर आप दे के बना सकते हो, बट ये सही नहीं है, पिलर बहुत छोटा है, पतला है, तो आप क्या करोगे? पहले से ही मोटा पिलर दोगे और जो कि 10 तल्ला बिल्डिंग खड़ा हो पाए। सो एट द प्लानिंग स्टेज ऑन ए रिस्क कैन बी अवॉइडेड। द रिस्क रिडक्शन, इट इज मे बी द वे ऑफ फिजिकल रिडक्शन ऑफ रिस्क। इट इज पॉसिबल टू टेक द रिड्यूस बाय पॉसिबल लॉस। रिस्क रिटेंशन, evaluate the process of risk causes achieved from the risk retention. Occurrence is very negligible. Risk transfer, transfer to the another person by third insurance company or by other insurance company. Then implementation says, आप रिस्क को आइडेंटिफाई किए, रिस्क कितना होने वाला है उसको जाने, देन कैसे हैंडल करेंगे वो जान लिए। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क डिसीजन, रिस्क को कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे। द स्टेप ऑफ द रिस्क इज द इम्प्लीमेंटेशन द रिस्क। नेक्स्ट स्टेप इज योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क। देन गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द सीईओ और रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर और कंपनी सेक्रेटरी। रिस्क को जो है आइडेंटिफाई करने के बाद आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लोगे, इम्प्लीमेंट करोगे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, और जो बोर्ड है और सीईओ सीएफ है उसको फीडबैक लेंगे और उसको जायजा करेंगे। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्क, लास्ट स्टेप, मैनेजर प्रोसेस हैज टू इम्प्लीमेंट द रिस्क डिसीजन, बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन और अल्टरनेटिव ट्रैकिंग द रिस्क and feedback to the CEO or risk management officer. So this is all about the process of risk. So I am just repeating,
स्टेप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द रिस्क, इवोल्यूशन ऑफ रिस्क, हैंडलिंग ऑफ रिस्क, implementation of risk, monitoring and your corrective action. Then next is your ISO 31000. ISO 31000. तो ये होता क्या है? रिस्क मैनेजमेंट में ISO 31000 प्ले ए वेरी वाइटल रोल. So what is that? ISO 31000 published as a standard as per 30th of November 2009. International Standard Organization. ISO stand for International Standard Organization. एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाते हैं जिससे कि आपका क्वालिटी और प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़े. So ISO 31000 is the published in 13 November 2009. Provide the standard for implementation of risk management. ये क्या देते हैं? Provide the standard for implementation of risk. And there is 11 key principle of risk management. जो 11 principle of key management हम लोग इसको देखेंगे. Then ISO 31000 provide the oversight the key duty of the board. ठीक है. The scope of this risk management is to enable the strategic management operation of the organization. Scope क्या है? It is a strategic management and operational risk management. So these are the ISO 31000. Then what is the benefit of risk ISO 31000? ISO 31000 का सब रिस्क है. प्लीज गो थ्रू दिस. इंक्रीज लाइवलीहुड ऑफ अचीव द ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है. एनकरेज द प्रोएक्टिव मेजरमेंट. लॉस होने का पहले जो है प्रोएक्टिव मैनेजमेंट बिफोर ऑकरेंस ऑफ सम इवेंट. It will help for the proactive management before occurrence. Prevention is better than the cure. दवाई खा लो, बुखार लग रहा है तो बुखार ही नहीं होगा. तो that is what called preventive measurement. Be aware the need, identify and treat the risk. क्या क्या टाइप ऑफ रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ट्रीटमेंट करना. Then improve the identification of opportunity of threat. SWOT analysis. स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, वीकनेस क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना है. उसी तरफ आपको एक्शन लेना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड एडवांटेजेस ऑफ ISO 31000. इम्प्रूव द गवर्नेंस. जो गवर्नेंस है, रूल रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, उसको फॉलो करवाना है. देन इम्प्रूव द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट ठीक से बन रहा है नहीं है, बैलेंस शीट ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, जो रिपोर्टिंग पार्ट है फाइनेंशियल, दैट हैज टू बी इम्प्रूव. इम्प्रूव द कंट्रोल ऑफ व्हाट? कंट्रोल ऑफ योर लॉसेस, वेस्टेज और नेचुरल रिसोर्सेज और रिसोर्सेज. ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज. Then help for the decision making and planning. Environmental protection. Minimum loss. Minimize your loss. जो भी हो रहा है वेस्ट को मिनिमाइज करना है और बेस्ट प्रोडक्ट को बनाना है. Improve organizational learning. A skill enhancement. So these are the some advantages. कुछ नहीं तो एटलीस्ट 5 से 6 पॉइंट लिख देना, ज़्यादा आता है नहीं है, और आएगा भी तो 5 से 7 पॉइंट लिख देना. ये तो बहुत पॉइंट्स है. देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 18 पॉइंट है. इसमें से 8 भी आप करेंगे तो इजीली हो जाएगा. चलिए मेरे साथ बोलिए. अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इंप्रूव द प्रोडक्शन, इंक्रीज द
productivity, loss minimization, then improve control, improve the governance. ऐसे तो 8 हो गया. Loss minimization, wastage minimization, risk management, improve the operational efficiency, effectiveness, health and safety. ठीक है, ऐसा आप लिख देना है. Then what is fraud risk management? Fraud risk management. What is fraud? Knowingly doing something is what called fraud. मतलब आप कंपनी का एसेट चोरी करके ले गए, हो सकता है फ्रॉड. दैट इज थेफ्ट. फ्रॉड मतलब हो गया जैसे सत्यम केस हुआ, सहारा केस हुआ, दैट द फ्रॉड. नोइंगली, बाय नोइंग द लॉ, you are doing the activities which lead to the loss of the company or the nation or society. Any willful act. So fraud risk management, it can be occurred internal or external employee. The loss may be occurred by internal or external employee or third party. Fraud can be defined that detect the tricky or sharp practice or breach of confidential information or perpetual profit or loss, some unfair or dishonesty advantages. Unfair practice करना, unfair which is not as per the law. So the fraud management policy help for the promote the open treatment of communication culture. ओपन कम्युनिकेशन कल्चर. फ्रॉड हो तो अपने आप वो बता देंगे कि हाँ यहाँ फ्रॉड हो रहा है, गलती हो रहा है. देन प्रोमोट द जीरो टॉलरेंस और फ्रॉड मिस्टेक. ये प्रोमोट करते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो डिफेक्ट, जैसे जापानीज में होता है जिट, जस्ट इन टाइम, जितना जरूरत है उतना मंगाओ, देयर इज जीरो इन्वेंट्री. सो जीरो टॉलरेंस, आपको मिस्टेक ही नहीं होना है. दे विल नॉट अलाउ द मिस्टेक, जीरो चांसेस ऑफ मिस्टेक. देन awareness among the employees, spread the awareness among the employee, encourage the employee to for suspicious transaction of fraud. एम्प्लॉय को एनकरेज करेंगे, उन लोग को ट्रेनिंग देंगे कि आप कोई भी सस्पिशियस, जो भी अगर फ्रॉड होने का आपको लग रहा है, चांसेस लग रहा है, तो हायर मैनेजमेंट को बताओ और मैनेजमेंट को बताओ. देन दे विल गिव अल्सो रिवार्ड ऑल्सो. देन स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग द एम्प्लॉय. एम्प्लॉय को जो है अमंग द एम्प्लॉय स्प्रेड करना है. Then define the fraud. Then fraud risk management policy. ये हो गया फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट. हर एक कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होता है, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी. सो डिफाइन करना है फ्रॉड को, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, कम्युनिकेशन चैनल होना, डिसिप्लिनरी एक्शन, रिव्यू द पॉलिसी. ये हो गया रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी. तो पहले क्या, डिफिनेशन, देन रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सिंग, देन कम्युनिकेशन चैनल, देन डिसिप्लिनरी एक्शंस, अगर कोई आदमी गलत किया तो एक्शन होगा, रिव्यू द पॉलिसी. सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी. देन इज योर व्हाट, रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट. अगर कंपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को नहीं अडॉप्ट किया तो क्या होगा, रेपुटेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. सो रेपुटेशन इज द ट्रस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज अगेंस्ट ओवर द ईयर ऑफ प्रोडक्ट सर्विस ब्रांड वैल्यू ऑफ टू द सोसाइटी. एक कंपनी अपना ब्रांड वैल्यू होता है. हम लोग फॉर एग्जाम्पल्स होते हैं फेसबुक, हाँ बहुत बढ़िया कंपनी है. टाटा,
टाटा के बारे में जब हम सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, हाँ एक एथिकल कंपनी है, इसके साथ बिजनेस डील कर सकते हैं, ठीक है। आज जैसे विजय माल्या का किंगफिशर कंपनी का नाम बोलेंगे तो क्या है, ट्रस्टी है, whether you can believe that promoter, no, so that is what called reputation risk। आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत अच्छा है, आपका सर्विस बहुत अच्छा दे रहे हो, ब्रांड इमेज बहुत अच्छा है, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड रेपुटेशनल रिस्क। देन रेपुटेशन ऑफ लॉस्ट ऑफ गुडविल, ब्रांड, शेयर प्राइस, strategy, relationship, regulation, regulators relationship, requirement, these are the some reputational loss or damages। corporate may be chances of reputation or then components of reputation risk, first तीन है, management reputation risk, preparation of reputation crisis, handling the reputation risk, so these are the reputational risk। नेक्स्ट इज नॉन कॉम्प्लायंस। आप अगर रिस्क को कॉम्प्लायंस नहीं किए तो क्या होगा, सो नेचुरली इफ यू नॉट कॉम्प्लाइंग द रिस्क इट विल लीड टू ए सीरियस प्रॉब्लम फॉर द योर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सेक्रेटरियल ऑडिट इज ए कॉम्प्लायंस ऑडिट। सेक्रेटरियल ऑडिट क्या है, कॉम्प्लायंस ऑडिट है, कोई का रूल रेगुलेशन मान रहा है नहीं मान रहा है, ओबे हो रहा है नहीं हो रहा है, सेक्रेटरियल ऑडिट करने से क्या होगा, ये आप जान पाएंगे कि वेदर कंपनी इज फॉलोइंग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, और गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो सेक्रेटरियल ऑडिट इज इफेक्टिवनेस ऑफ द टूल ऑफ कॉर्पोरेट कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट। जो भी कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट है, व्हाट इज कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट, कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट नॉट द obeying the rule and regulation or whatever the applicable law, it help for the detect the non compliance। अगर आप नॉन कॉम्प्लायंस करते हैं, रूल ओबे नहीं करते, सो क्या होगा, आपका रेपुटेशन खराब हो सकता है और पेनल्टी हो सकता है, बिजनेस शॉट डाउन हो सकता है, अब बैंक अकाउंट सीज हो सकता है, सो देयर में बी सो मेनी अदर केसेस। सो टू फोल्ड ऑब्जेक्ट नॉन कॉम्प्लायंस में भी टू फोल्ड, फर्स्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर, सेकेंडली एवॉइड लीगल एक्शन। सो जो नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ रिस्क, अगर रिस्क अगर आप हो सकता है, अगर उसको नहीं, तो पहले हो गए स्टेक होल्डर प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, आपको पहला देखना है कि स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। सेकेंड हो गया कि अवॉइड द लीगल एक्शन, कंपनी क्लोज होने के पहले या पेनल्टी इंपोज करने के पहले आप उसको क्या करना है, आपको प्रिवेंटिव एक्शन लेना है। सो दैट इज कॉल्ड नॉन कॉम्प्लायंस रिस्क मैनेजमेंट। So next is your CS audit, secretarial audit. So practicing कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरियल ऑडिट, जैसे इसका रूल जो है 1/4/2020 से चेंज हो गया, सेक्रेटरियल ऑडिट का प्रोविजन किसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सो उसके बारे में अभी तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, रूल 8 और रूल 9 इसमें कवर होता है। सो सेक्रेटरियल ऑडिट प्रैक्टिस असाइन टू द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटर, जो CS है जो है कि उसका रिस्क कंप्लायंस ऑफिसर उसको माना जाता है, और सेक्रेटरियल ऑडिट पर चेक द कंप्लायंस ऑफ द विद द वेरियस लॉ एप्लीकेबल। इट गाइडेड फॉर द सेक्रेटरियल ऑडिट हेल्प फॉर द इंस्टीट्यूट कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, रूल रेगुलेशन को कंप्लाई करना है, प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी वेरीफाई द ओवरसाइट द रिक्वायरमेंट अंडर द लॉ। सो दीज आर द कंपनी सेक्रेटरी रूल और प्रैक्टिस। इसको हम लोग डिटेल नहीं जा रहे हैं क्योंकि इसका सेपरेट चैप्टर भी है सेक्रेटरियल ऑडिट। सो आप उसका मेरा वीडियो नहीं देखें तो
you can go through that. Then who are the beneficiary of secretarial audit? जैसे होगा promoter, management, government, then investor and stakeholder. They are known as beneficiary of your secretarial audit. Promoter, promoter क्या है? They are the beneficiary of क्या? Secretarial audit. Promoter क्या होगा? अगर कंपनी ने कंप्लायंस किया तो उसका रेपुटेशन अच्छा रहेगा और पेनल्टी अवॉइडेंस से वो बच जाएगा. देन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट विल एबल टू टेक द प्रॉपर डिसीजन मेकिंग. हाँ, कंप्लायंस हो रहा है रूल एंड रेगुलेशन, सो मैनेजमेंट इज एबल टू टेक द डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव. देन थर्ड इज योर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन होता है? जो होल टाइम कंपनी में रहता है. जैसे आपका डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर मार्केटिंग और डायरेक्टर ऑपरेशन, वो सैलरी लेते हैं रेगुलर. पर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या होता है? वो एम्प्लॉय कंपनी का नहीं होता है, वो दे आर गेटिंग द सिटिंग फी. तो उन लोग का हमेशा रहता है बिकॉज दे हैव टू कम द इन द बोर्ड मीटिंग. तो हम लोग को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता कंपनी के बारे में, कोई भी इवेंट के बारे में, बट दे आर टेकिंग द डिसीजन. तो उन लोग को हमेशा डर रहता है. जो बट कंपनी सेक्रेटरी अगर कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट है या CS ऑडिट हो तो क्या होगा? वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. हाँ चलो, कंपनी इज कंप्लाइंग ऑल द रूल रेगुलेशन और जो है सेक्रेटरियल ऑडिट हो रहा है. इट हेल्प गिव द कॉन्फिडेंस ऑफ द नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. देन गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी, जो भी गवर्नमेंट है उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है. बिकॉज अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोएक्टिव मेजरमेंट, जो गवर्नमेंट देखता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर रूल रेगुलेशन को मान रहा है, टाइमली रिटर्न फाइल कर रहा है, टाइमली पेमेंट कर रहा है, सो उसका रेपुटेशन बढ़ जाता है एंड दे थिंक दैट दिस कंपनी इज फॉलोइंग द स्टैंडर्ड. सो उसका एक बढ़िया कॉन्फिडेंस आता है. देन इन्वेस्टर आर थिंकिंग दैट देयर money is growing and they are getting proper return, so it build up the confidence about the investor. Then other stakeholder मतलब they those person who are directly indirectly related with the business. ये भी internal external, जैसे employee और you may be say employee, debtor, creditors, government, they are the stakeholder. उन लोग को और bankers जो financial institution है, so they will satisfy कि हाँ सेक्रेटरियल ऑडिट हो रहा है, कंप्लायंस हो रहा है, so they will show that हाँ उन लोग का वैल्यू इंक्रीज होगा, उन लोग का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा and they will take active participate in the management. So these are the beneficiary of secretarial audit. Sorry. Promoter, management, non-executive director, government, investor and stakeholder. Next is your responsibility of risk management. Responsibility of risk management. The board of director is ultimately responsible for the organization. एक कंपनी क्या है? कंपनी इज ए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. एक कंपनी इज ए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. जो कंपनी इज अनेबल टू टेक द डिसीजन बाय हिमसेल्फ. सो इन्वेस्टर आर इन्वेस्ट इन द और गिवन द मनी shareholder in the company and it is managed by the group of professionals that are called directors. Collectively it is called board. So board have the proper responsibility for the risk management. So the success and failure of the organization is depend on the board. So total responsibility of the risk management depend on the board. क्योंकि आप एनुअल रिपोर्ट भी देखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट का अलग से एक ठो पार्ट भी रहता है एनुअल रिपोर्ट में, शॉर्ट एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट. सो बोर्ड इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द कंपनी पॉलिसी ऑन रिस्क. बोर्ड का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी का पॉलिसी को, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को इवेल्युएट करना. एंड एंटर द प्रोग्राम मस्ट सपोर्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. जो भी रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो सपोर्टेड बाय द डायरेक्टर्स. द रिस्क आर इंटीग्रेटेड विद द इंटरडिपेंडेंट. रिस्क जो है
इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए। द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी शुड बी रेफर द कंपनी रिस्क प्रोफाइल। कंपनी का जो मिशन विजन स्टेटमेंट है उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को टाई अप करना है। सो अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव। कंपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी शुड बी क्लियर और डिस्क्राइब द रोल एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑडिट कमिटी। जो भी ऑडिट कमिटी है या बोर्ड का कमिटी है, डिफरेंट कमिटी होता है, ऑडिट कमिटी, सीएसआर कमिटी, शेयर होल्डर ग्रीवेंसेस कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी, जो भी टाइप ऑफ कमिटीज फॉर्मुलेशन होता है, सो प्रॉपर रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी गिवन। देन रोल ऑफ बोर्ड ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट इन हाईलाइट इन किंग कोड। साउथ अफ्रीका जो है किंग कमेटी 2009 में बना था, सो उसमें रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड का डिफाइन किया गया है। सो क्या है किंग्स साउथ अफ्रीका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। सो किंग्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी क्या बोलता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, द बोर्ड हैव डायरेक्टर ए रोल टू सेट आउट द रिस्क एप्रोप्रिएट और रिस्क टॉलरेंस लेवल ऑफ द कंपनी। बोर्ड का जो है उसका रोल है कि सेट आउट द रिस्क टॉलरेंस लेवल। व्हाट इज द रिस्क टॉलरेंस लेवल? शुड टेक इनटू अकाउंट ऑफ सस्टेनेबिलिटी, एथिक्स एंड compliance. Companies should, the director should know about sustainability, ethics and compliance of risk. So King's Committee, King's Code of Corporate Governance in South Africa. King's Committee third. So the board role is to set up the risk appetite or risk tolerance level. Then they should take the accountability, sustainability and ethical and compliance risk. जो भी sustainability क्या है? The resources should be used in a such a way it should preserve for the next organization, taking consideration of all environmental cares, stakeholder satisfactions. Then ethical, rule or regulation adherence should be there. Then is what? Your board should oversees the identification of risks. Board should oversees and identification the risk area. What are the different type of risk that has to be identified? And then board should achieve the involve the identify the monitoring the key risk of the process. What is the key risk in the business that board has to identify? The risk committee has to be established. Risk committee has to be established. The board has to be obtain and demonstrate the deal with the competitive risk issue. बोर्ड का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या रिस्क है उसको कैसे हैंडल करेंगे, उसके लिए क्या सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा. एंड द बोर्ड इज द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क मैनेजमेंट. सो दीज आर द किंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट.
जिससे मैंने बोलता है सेटअप रिस्क एपेटाइट कमिटी, सस्टेनेबिलिटी एथिक्स, बोर्ड शू ओवरसी आइडेंटिफाई द risk of area, identify the risk, assess the risk, liability, mitigate the risk. Board should achieve the involved in the identification, monitoring the risk committee होना चाहिए, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबल बोर्ड का ही है रिस्क मैनेजमेंट का, एंड ओबे द डेमोन्स्ट्रेशन द डिफॉल्ट ऑफ द रिस्क। नेक्स्ट हो गया यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, द बोर्ड ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द nature and existence of the significance of the risk. The board had ultimate responsible for the significance of the risk, nature and significance of the risk. The board should at least, or the board has the maintain the sound risk management policy or internal control system. The board has ultimate responsibility to establish the sound internal control system and risk management practice, and the board should at least annually conduct the review the effectiveness of the risk management or internal control system. साल में एक बार जो रिस्क इंटरनल कंट्रोल सिस्टम या रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को रिव्यू करना है, चेक करना है और मॉनिटर करना है, एंड दे शुड रिव्यू द एंड दे शुड रिपोर्ट द स्टेक होल्डर as they have done. Whatever they have done, they should report to the stakeholder. And any material disclosure, anything which is materially, that should be disclosed in the financial statement, and transparency in preparation financial statement, operational and compliance. The non-executive director should satisfy themselves with the integral or financial information or control system of the risk management of the robust and डिफेंसेबल। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हाँ हम लोग जो भी रूल रेगुलेशन मान रहे हैं इट इज एज पर द स्टैंडर्ड, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन रहा है इट इज एज पर द नॉर्म्स और adherence to the rule and regulation. So this is UK corporate governance code. So next is your legal provision of risk management under listing agreement. क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट जो क्या बोलता है लीगल ये में, द कंपनी शुड हैव प्रोसीजर द इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ मेंबर टू रिस्क मैनेजमेंट एंड मिनिमाइज द प्रोसीजर, और द प्रोसीजर्स हैड शुड बी पीरियडिकली रिव्यू। रिस्क मैनेजमेंट का पॉलिसी बनाना है, इसको पीरियडिकली रिव्यू करना है, एनालिसिस मैनेजमेंट शुड टेक ए डिसीजन, एनालिसिस करना है, और रिस्क कंसर्न और इंटरनल कंट्रोल शुड बी established. Then role of company secretary. Company secretary ultimately responsible है कि enterprise wide risk management, entrepreneur wide risk management ERM उसको डेवलप करना है, and the board या the director are may be have the risk management सब कमिटी, रिस्क मैनेजमेंट का सब कमिटी बना सकते हैं, रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देंगे, हु विल बी डूइंग व्हाट टाइप ऑफ जॉब। एंड दिस शुड एंश्योर दैट द इंटीग्रल फ्रेमवर्क ऑफ द स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को बिल्डअप करना, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल। देन evaluate the risk, identify the risk, evaluation of risk and management of risk, and taking the feedback. Risk and control the consequence separate from his organization. So these are the some of the role of company secretary. Then company secretary क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, what may be the question, what is the organizational risk management policy, कंपनी का क्या रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है, then who is responsible for the risk management policy, then what is the responsibility of ERM risk management program, how it can be evaluated, how it is related to the organizational objective, how
organization level of risk tolerance, how communication between the top level across the top to bottom level, risk, what are the different kind of risk can may be occurred, what the process to handle the risk, then all these questions can be asked by the company secretary. Then last is your internal control. ये बहुत ही important topic है, frequently they are asking in the internal control. So what is internal control system? Internal control is a process or effective organizational people information technology system designing to help the organizational accomplish the specific organizational goal. It is a process. Internal control system is a process established in the organization for proper flow of information, proper designing of information technology for achieving the organizational goal. An effective internal control system balances the risk and control to help the organization to exploiting the business opportunity. ये प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? ये इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हेल्प द बैलेंस द रिस्क एंड कंट्रोल. इंटरनल कस्टम जो कंट्रोल सिस्टम है रिस्क को बैलेंस करता है. एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पुट ए प्लेस टू कीप इन द कंपनी कोर्स टुवर्ड्स द कंपनी गोल एंड अचीवमेंट. जो इंटरनल कस्टम बेस्ट इंटरनल कंट्रोल प्रैक्टिस हेल्प फॉर द अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल goal. Then what is the importance of internal control system? Company internal control system key role management. It establishes the key role management or risk significant fulfilling the business objective. फर्स्ट हो गया जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में इसको मदद करता है. देन सेकेंड हो गया इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर. It help for the achieving the safeguard the interest of the investor or stakeholder, and it help for the safeguard the asset of the company. Optimum utilization of resources can be possible and safeguard the asset of the company. Then effective internal control system also maintain proper accounting record. Accounting record maintain करने में help करता है and internal control system should be established for accounting control system. Then environmental and other aspect. It also consider the environmental aspect of the company or protect the rule and regulations and adherence to the rule and regulation. जो भी कंपनी परचेज मैनुअल है, फाइनेंस मैनुअल है और टेंडर मैनुअल है, what are the procedural aspect it help for the company to achieve the goal and procedural aspect has to be comply with, and it detect the error or fraud, or maybe you can say error or fraud can be eliminated or it can be removed, or prevention is better than the cure. So proper internal control system help for prevention of error and fraud. So these are the some of the objective of internal control system. It is defined as the process of effective organizational people to inform the technology system design help the organization accomplish the organizational goal. Effective internal control system balance the risk and the control help the business opportunity fulfill. Keep the company cost toward the profitability of the mission vision of the company can be achieved. Then importance. The company internal control system is the internal key role fulfill the business objective, contribute the safeguard of the investor safeguard and protect the asset of the company. Efficiency and effectiveness can be increased by complying of rule and regulations. Then financial control and maintain of accounting record is possible. Then company is able to avoidable financial risk. Objective of internal control to have to operate with the environmental
So these are the some internal control objective of internal control. Then COSO. What is COSO? Committee of sponsoring, organizing. What is COSO? Committee of sponsoring and organizing the Tradeway Commission, COSO, US प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव. जो यूएस का जो प्राइवेट सेक्टर है, दे टुक द इनिशिएटिव एंड फॉर्म कोसो, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेडवे कमीशन. सो देयर आर द 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ कोसो. सो कोसो क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस, कंट्रोल द प्रोसेस इफेक्टिवली एंटायरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट. सो इसका 4 जो है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कोसो का ऑब्जेक्टिव है. टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को इसको अचीव करता है. सो जनरली ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल तो होता ही है, बट ऑपरेशनल, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस. तो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है ऑपरेशनल को और रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस. सेकंड, इफेक्टिव by people. So policy and procedure has to be comply with. Then ability to provide the reasonable assurance, means it gives the proper guideline to the top management or CEO or CFO, or you can say top management, senior management for decision making. So it able to provide the reasonable assurance for proper decision making. Then adaptable the entire entity structure, means it is flexible one. कोसो का जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है, इट इज फ्लेक्सिबल हुआ है. एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल इट विल बी फ्लेक्सिबल, इजीली एडेप्टेबल है. सो दीज आर द 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ, और यू कैन से this is the fundamental concept of internal control of COSO. So achieving the objective, operational, reporting and compliance. Then effected by people, means about the policy procedure manual can be effected by the people. Actions, organization, internal control. Ability to provide the reasonable assurance, सीनियर मैनेजमेंट को उसको डिसीजन मैनेजमेंट में लेने में हेल्प करता है. देन एडेप्टिव, फ्लेक्सिबल वन, ईच बिजनेस ऑपरेशन में इजीली एडेप्ट हो जाता है. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कोसो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. सो 3 ऑब्जेक्टिव इसका है. क्या है? ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव एंड कॉम्प्लायंस ऑब्जेक्टिव. सो व्हाट इज द रिपोर्ट कॉम्प्लायंस operating objective? Effectiveness, proper efficiency and effectiveness of the entity, including financial or non-financial objective can be achieved with safeguard of the asset. So that is what operational objective. Then reporting or objective means internal, external, financial and non-financial reporting. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, प्रॉफिट लॉस करना. नॉन फाइनेंशियल हो गया आपका CSR रिपोर्ट, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. दीज आर कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. थर्ड इज योर कॉम्प्लायंस ऑब्जेक्टिव, और जो रूल रेगुलेशन लॉ है उसको कंप्लाई करना, एडहरेंस टू द रूल रेगुलेशन, compliance management, proper compliance management. So these are the 3 objective of COSO internal control: operational objective, reporting and compliance objective. Then component of internal control: control the environment, risk assessment, control the activities, then information communication, and fifth your monitor the activities. These are the 5 components of COSO internal control. So control the environment. कैसे एनवायरमेंट को कंट्रोल करेगा? इट गिव द स्टैंडर्ड एंड प्रोसेस टू कैरी आउट इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? इट इज ए प्रोसेस. एक प्रोसेस ऐसे डेवलप हो जाएगा जो कि
एक आदमी का जो काम है दूसरा आदमी जब करेगा तो ऑटोमेटिक ये चेक हो जाएगा. 2-way 3-way process of checking the work, that is what called control the environment. स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जिसको बोलते हैं वो डेवलप हो जाएगा. ठीक है. देन रिस्क असेसमेंट, एंटायर द रिस्क assessment. Every entire faces the variety of risks that has to be internal, external. Then control activities. Control the activity of the organization through the policy and procedure. जो भी एक्टिविटीज है ऑर्गेनाइजेशन का वो स्टैंडर्ड और पॉलिसी एंड प्रोसीजर से वो कंट्रोल कर लेना है. देन इन्फॉर्म एंड कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जो भी है एक लेवल से दूसरा लेवल को जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन होगा, इट बिल्ट ए सिस्टम व्हिच द इंफॉर्मेशन कैन बी फ्लो ऑफ. फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. द मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन, जो भी काम जो किया वो ऑटोमेटिक वो इवैल्यूएट हो जाएगा. सेपरेट इवैल्यूएशन और कम्बाइंड इवैल्यूएशन, सेपरेट इवैल्यूएशन हो सकता है और कमांड इवैल्यूएशन भी हो जाएगा. सो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. फर्स्ट इज कंट्रोल द एनवायरनमेंट, सेकंड इज रिस्क असेसमेंट, क्या रिस्क है, इंटरनल और एक्सटर्नल रिस्क. कंट्रोल द एक्टिविटीज, एक्शंस, जो भी पॉलिसी प्रोसीजर है उसका कंट्रोल द एक्टिविटीज. इन्फॉर्म एंड कम्युनिकेशन, देन मॉनिटरिंग द रिस्क. सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. सो मैंने एक चार्ट बनाया, प्लीज गो थ्रू द चार्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ऑब्जेक्टिव, हेलो. देन कंपोनेंट्स एंड प्रिंसिपल. कंट्रोल एनवायरनमेंट, ये जो है कैसे कंट्रोल होगा. कंट्रोल एनवायरनमेंट मतलब हो गया ए ऑर्गेनाइजेशनल डेमोन्स्ट्रेशन द कमिटी ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिक्स वैल्यू. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डेमोन्स्ट्रेट द इंडिपेंडेंट from the management, exercise the oversight and develop and performance of internal control. Organization to hold to accountable internal control and responsibility. Risk assessment क्या हो गया, the organizational specific object, the specify the clarity, enable the identify, assessment and your रिस्क ऑब्जेक्टिव. रिस्क असेसमेंट करना है, आइडेंटिफाई द रिस्क, देन योर इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क लॉसेस, देन मिटिगेशन एंड टेक द एक्शन, देन पोटेंशियल फ्रॉड असेसमेंट ऑल्सो, देन कंट्रोल एक्टिविटीज, select the develop the control technological support to achieve the organizational goal, mitigating the risk. Organization obtain the general use of relevant quality and quantitative information to support the international function internal control system. Monitoring activities क्या हो गया, select and develop the performing ongoing or separate evaluation of components of internal control system. Then what the role of responsibility with regard to internal control. So first is management, then board, director, internal auditor and employee. They are the role and responsibility with the internal control. Management का सबसे CEO, CFO are the responsible for the proper internal control. Then board of director. Then third is internal auditor. Then employee. So
So management, the role of management to implement the board policy or risk control. The management, the board has the director responsible for company internal and control system, and your internal auditor. Internal auditor to play a very vital role to evaluate the effectiveness of internal control system. Then employee is responsible for internal control system and accountable for achieving the objective. So thank you very much friends. This is about the my topic, internal control system, risk management and internal control system. So this is my channel. I am Possible Commerce Guruji. Please like, comment and subscribe the channel. So I will be motivated and keep on growing. Thank you very much. And these are the some my YouTube channel or Play Store or slide shares. So you can go through that also. Very free videos are there. फ्री वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं, एंड इट विल बेनिफिट फॉर यू फॉर. थैंक यू वेरी मच.